Good morning, everyone. So, as per your request, I am starting with the last two questions of exercise 10.5, and then we will continue with our next chapter, that is 11th chapter. I hope you all will be ready with your geometry material. And your second asked question of the exercise, 11th question was ABC and ADC are two right triangles on the same hypotenuse. This is AC. Common hypotenuse. On this hypotenuse, I have a right triangle, this, and one more right triangle, this one. Just a minute. Yes, ABC and ADC. So here this angle will be 90 degree and here this angle will be 90 degree. And we have to prove that angle CAD is equal to angle CBD. CAD means this angle, let this is X, this is equal to CBD. So we will have to join BD to complete our angle CBD. This is Y. We have to prove that angle X is equal to angle Y. ठीक है, तो इसमें आप बोलेंगे angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. And if they both are 90 degree, that means their sum is equal to 90 plus 90, that is 180 degree, right? And if opposite angles of a quadrilateral, ये आपका quadrilateral ही बन गया, ठीक है, और इसके opposite angles का sum 180 हो गया. That means quadrilateral ABCD is cyclic, ठीक है. And if this is cyclic, means we can draw a circle which will pass through all 4 points of this quadrilateral. ठीक है. If we can draw a circle, can I say that X is equal to Y? What is the reason? Angles are given by same segment. Angles in the same segment. ये CD से एक angle एक पर जा रहा है from the same points C and D. One of the angle is at point B. So these are the angles in the same segment. Hence proved. ठीक है, hence proved. और यही आपने प्रूव करना था, राइट? और मैम सेगमेंट यही होती है ना, जो कॉर्ड और जो सर्कल होता है उसके बीच में. हाँ जी, यहाँ पर बेटा हम सेगमेंट का वो मतलब नहीं ले रहे हैं. सेगमेंट वैसे तो हम कहते हैं कि हमने अगर कॉर्ड ड्रॉ कर दी तो ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हम सेगमेंट के एक्चुअल मीनिंग पर जा रहे हैं. सेगमेंट मतलब हिस्सा, ठीक है, इट्स अ पार्ट. तो ये दोनों एंगल्स, यहाँ से अगर मैं ये एंगल बना रही हूँ, ये एंगल बना रही हूँ, दे आर इन द सेम पार्ट ऑन द सेम साइड इन द सेम पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. ये वाला पार्ट हमने लिया हुआ है, तो ये दोनों इसी पार्ट में है, ठीक है. And now the last question. We are given that the quadrilateral is cyclic as well as parallelogram. Cyclic है, so let me draw a circle. Parallelogram भी है, तो आपको प्रूव करना है that this is a rectangle. ये जब भी आप बनाएंगे ये बनेगा ही rectangle. अगर आप इसको parallel बनाने की कोशिश करें. Now you are given what is given? A cyclic quadrilateral, a cyclic parallelogram, A, B, C, D, and we have to prove that this is a rectangle. Means we have to show that all of its angles are 90 degree. ठीक है, rectangle ही prove करना है. Okay, prove कर लीजिए. First of all, we are saying as ABCD is a cyclic quadrilateral. दो words given है आपके पास, एक तो ये cyclic है, second is it is a parallelogram. So हम दोनों ही conditions use कर रहे हैं. As it is a cyclic quadrilateral, so angle A plus angle C, opposite angles, their sum is 180 degree. ठीक है. और दूसरी condition है आपकी कि ये parallelogram है. As ABCD is a parallelogram. लास्ट टाइम हमने जब किया था तो हमने इसका ये रिजल्ट यूज किया था कि इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा.
उससे थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, बट अगर हम सी करें और because they are the opposite angles of parallelogram. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप या तो पुट करके दिखा दीजिए या डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी चलेगा। एक ही जगह सी पुट करना है, हो जाएगा c 90 plus c is equal to 180, so double of c is equal to 180. That means you will get angle c is equal to 90 degree. And if c is 90 but c was equal to a, so a is also 90. And then we will say similarly angle b and angle d, they will also be 90 degree each. So if all the angles are 90 degree of a parallelogram, then it will be a rectangle. ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी को भी नहीं है बेटा? हम नहीं है वॉइस प्रॉब्लम। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 11 और चैप्टर 11 की फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपने खुद करनी है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द एंगल्स 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड यू ऑल हैव डन। 22.5 का कैसे बनाएंगे? हाँ वो बता देते हैं, मैं आपको देखो एक बारी जो जब बोर्ड एग्जाम होते थे ना 9th में, आपसे कुछ टाइम पहले तक बोर्ड एग्जाम होते थे, जो एग्जाम आता था वो बोर्ड की तरफ से आता था, होते स्कूल में थे, चेक स्कूल में होते थे, बट एग्जाम बोर्ड की तरफ से आता था। उसमें आपका एक क्वेश्चन ये आया था, ड्रॉ एनी एंगल एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो उसमें एंगल आपने कोई भी अपनी मर्जी से सिर्फ 2 लाइंस ड्रॉ करनी थी और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। देखो जैसे हमने किसी भी चीज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं, अगर आपने 20 और 40 जैसे हम क्लास इंटरवल्स की बात करते हैं 40 to 60, 60 to 80, तो इसमें अगर मुझे मिड पॉइंट तक पहुंचना होता है तो उसका क्या रूल होता है, कैसे करते हैं? दोनों को मीन ले लेते हैं, दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस करके 20 और 40 को प्लस किया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया, आपके पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एंगल्स भी फाइंड आउट करते हैं, राइट। अगर आपने आपको ये बताना है कि अगर आप 90 और 60 से एंगल बनाओ तो कितने डिग्री का बनेगा, एंगल बिल्कुल 90 और 60 से सेंटर में जाएगा। अगर हम एक आर्क 90 से लगा रहे हैं, एक आर्क 60 से लगा रहे हैं, तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? दैट विल बी 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितने डिग्री का बन जाएगा? 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री का वो एंगल आ जाएगा। 22.5 भी समझ आ गया, 45 का हाफ, 45 का बाइसेक्टर। 0 और 45 का अगर आप बीच वाला एंगल निकाले तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 22.5 प्लस 0/2, हाँ जी, दैट इज 45/2 विच इज इक्वल टू 22 1/2 डिग्री। तो अगर आप एक आर्क 0 डिग्री से लगाएंगे, एक आर्क आप 45 डिग्री से लगाएंगे, देन यू विल गेट द हाफ ऑफ द एंगल। अगर आपने किसी भी एंगल का हाफ करना है, यू आर सेड दैट ड्रॉ एनी एंगल, तो मैंने सिर्फ स्केल से ये एंगल ड्रॉ कर लिया विदाउट एनी मेजरमेंट। इन्होंने कहा कोई भी एंगल ड्रॉ करो, देन यू हैव टू ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। आप अपनी कंपास खोलेंगे, आर्क लगाएंगे, ठीक है, ये आपकी आर्क, हाँ कितनी भी आर्क। अगर आपको एंगल नहीं पता ना कितने डिग्री का, आपको ये बोला सिर्फ एंगल ड्रॉ करो, तो आपने तो सीधा लाइंस ड्रॉ कर दी, राइट। उसके बाद आप कितनी भी कंपास खोल के ये आर्क लगा लो, राइट। ये जो पॉइंट है दिस इज 0 डिग्री, और ये आपने जितने भी डिग्री का एंगल जो भी होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने का है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे इसका हाफ ड्रॉ करना है। तो हाफ ड्रॉ करने के लिए मुझे ये पता है कि मुझे एक आर्क 0 से लगानी है और एक आर्क उसी पॉइंट से लगानी है जिसका मुझे हाफ करना है। So I will open my compass more than half of this angle. एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से आप लगाएंगे। हमेशा आपने अपनी कंपास को ये जो सर्कल आप बनाते हैं, जो आर्क बनाते हैं, इसी के ऊपर ही रखना होता है, ठीक है। तो एक आर्क आपने यहाँ से लगाई, एक आर्क आपने इस पॉइंट पे रख के लगाई। Now you will join this point of intersection of the arcs to the origin. ये आपका जो एंगल बन जाएगा, this will be half of this angle. जितने भी डिग्री का आप बनाएंगे उसका हाफ बन जाएगा, ठीक है।
अब मुझे फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, 90 डिग्री एंगल आता है सबको? मैम कंस्ट्रक्शंस लिखनी है चारों में? नहीं, आपने सिर्फ ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल में करना क्या होता है? एक सीधी लाइन, एक टेढ़ी लाइन। सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, बट कंपास से तो बनाना है ना। उसके लिए भी तो कंपास चलाना आना चाहिए। स्केल से बन जाता है। आता है मैम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 90 डिग्री सबको मैम आता है। इनकम बताना है जब स्केल से बन जाता है। इसी लाइन पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। लेट मी नो। ओके, मैम आपकी वीडियो पॉज हो रही है बार बार। स्लो मोशन। मैम स्लो हो गया। वॉइस भी नहीं आ रही। हाँ जी, आपके अब आ गई मैम। स्लो मोशन मैम, अब फास्ट हो गए। लॉस्ट हो गई। जस्ट हाँ जी, सो 90 डिग्री एंगल के लिए हम कह रहे हैं वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग अ लाइन। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कंपास रखी, टिप ऑफ द कंपास, यू आर ओपनिंग इट एंड यू आर ड्राइंग एन आर्क। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्या करते हो उसके बाद? उसके बाद हम पहले 60 डिग्री की दो आर्क लगाते हैं। पहली आपकी आर्क 60 डिग्री की लगती है, यहाँ से 120। आपने 120 की लगाई। ठीक है, अब 60 और 120 के बीच में आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 60 प्लस 180, 180 डिवाइडेड बाय 90। इसका मतलब आपने एक आर्क 120 से लगानी है, एक 60 से लगानी है, यू विल गेट योर एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क। ठीक है, इस पॉइंट से मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट आप एक्चुअल बनाओगे तो आपका प्रॉपर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मैम हाँ जी, जब हम सीधा इसको स्केल से बना सकते हैं 90 डिग्री वाले का, तो इतना कंपास का ये काम बेटा करना जरूरी? हम ज्योमेट्री करते ही क्यों हैं? अगर हम सारा कुछ हमें पता है कि हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें तो ज्योमेट्री की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। ये ऐसे ही अगर सीधा दीवारें, घर की बिल्डिंग्स की सब इसी तरह से बिना मेजरमेंट के बनने लग जाए, ठीक है, हम श्योर हैं कि हमारे घर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल एक्यूरेट और सिमेट्रिकली बनेंगे। वहां पे मैम हर 90 डिग्री एंगल में अलग केस होता है, बाकियों में अलग होता है। तो वही तो कह रही हूँ, बिल्डिंग्स तो सारी बिल्कुल सीधी बनती है, फिर भी वहां पे हर चीज से मेजरमेंट क्यों की जाती है? कभी देखा है घर बनते हुए कि दीवार सीधी आ रही है या नहीं आ रही है? हर चीज की ना मेजरमेंट होती है। ये तो चलो जो घर बनाते हैं वो तो हमारे इतने एजुकेटेड नहीं होते, बट जो आर्किटेक्ट की अगर आप बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, वो प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ सब कुछ बनाते हैं। रोड जैसे बनती है वो सारे ज्योमेट्री हम करते हैं इसलिए हैं ताकि हमारे पास हर चीज एक्यूरेसी से आए। ठीक है, इसीलिए कंपास बनी हुई है ताकि सारे एंगल्स उसी के अकॉर्डिंग, चाहे 90 डिग्री हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो ये सब हमारा ज्योमेट्री का मतलब ही यही है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग विद एक्यूरेसी, राइट? चलिए, 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन बन बतानी जाएगा। भी है कि कैसे कैसे करनी है। नहीं नहीं नहीं, आपने सिर्फ ड्रॉ करने हैं। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। नहीं, आपने सिर्फ ड्रॉ ही करने हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन मैं आपको बता दूंगी, बट अभी आपने सिर्फ पहले इस एक्सरसाइज को सिर्फ ड्रॉ कर लेना, राइट? चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट। हाँ जी, 30 डिग्री बन जाएगा। किसका हाफ? 22.5 सीख लिया है। यस मैम। 22 0 हाफ एंड का। 60। अगर आप लगाएंगे 30, यस मैम। 22 हाफ का 0 एंड 45 45 डिग्री से 15 डिग्री के लिए 0 एंड 30। का बाइसेक्टर। 0 एंड 30 डिग्री, 30 का बाइसेक्टर। चलिए, नेक्स्ट इज 75 डिग्री। 75 डिग्री 60 एंड 90। हाँ जी, हाँ जी, 75 डिग्री, 60 और 90 पर आपको जाना पड़ेगा। एक आंख 60 से और एक 90 से, यू विल गेट 75 डिग्री एंगल। 105 के लिए 90 एंड 120। बिल्कुल ठीक है। 90 and 180 है 90 और 180 से कितना? 135 का बना रहे हो? ओके, 135।
हाँ 135 के लिए 90 और 180, ठीक है जी। अब उसमें लास्ट आपका, चलिए कम ऑन नेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। साइड आपको गिवन है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि कितनी साइड लेनी है, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी साइड लेनी है। यू कैन टेक 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे ड्रॉ करोगे जल्दी से बता दो। यस मैम। मैम पहले 5 मैम सेंटीमीटर पहले कंपास जितने ले मर्जी लेंगे, सेंटीमीटर फिर की एक दोनों लाइन ले लेंगे, आर्क लगा देंगे और क्रॉस करके ज्वाइन कर देंगे। हाँ जी, मैम इक्विलेटरल तो तभी होगा जब 60 60 60 होगा। हाँ एक ही बात है, या आप तीनों साइड्स इक्वल ले लो या ट्रायंगल। ठीक, आपने यहाँ से एक साइड ले ली ए बी, इसको आपने 5 या 6 कितने भी सेंटीमीटर का आपने इसे ले लिया। देन ओपन योर कंपास इक्वल टू ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपने खोल ली और एक आर्क लगा ली फ्रॉम पॉइंट ए, कीपिंग द टिप ऑफ द कंपास एट ए, और वी आर सेइंग टेकिंग ए एज सेंटर, वी आर ड्रॉइंग द आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। Then with B as center, draw an arc of 6 centimeter, right? And then we are going to join A to this point of construction intersection C and B to C. ये आपका बन जाएगा equilateral triangle, और इसमें आप लिख देंगे because you have taken AC is equal to AB is equal to BC. All three sides are equal, so this is equilateral triangle. ठीक है, बस ये justification हो गई इसकी, right? चलिए अब आ रहे हैं हम इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की मेन पार्ट पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू ड्रॉ, और इन 3 टाइप्स में से आपका एक क्वेश्चन तो 100% आना है, राइट? सो फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं इन दिस क्वेश्चन में। अभी एक्सरसाइज तो आपकी 11.2 है, बट आई एम नॉट taking the question from the exercise. I am just explaining that suppose you have to draw the triangle ABC. अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक साइड गिवन होगी, ठीक है? वन ऑफ द साइड इज गिवन टू यू, और क्या गिवन हो सकता है, बाकी साइड्स रह गई हमारी BC एंड AC। हो सकता है क्वेश्चन में इन दोनों का सम गिवन हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस गिवन हो, या AC माइनस BC। ये 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक साइड गिवन है, लेट दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके अलावा आपको ये 3 चीजों में से कोई एक चीज गिवन होगी और आपको बोलेंगे कि आप ट्राइंगल ड्रॉ करो ABC, ठीक है? तो इन तीनों में लगभग हमारे कुछ सिमिलर स्टेप्स चलने हैं, और वो हम किस तरह से करेंगे। लेट मी फर्स्ट टेक केस ऑफ एडिशन, दैट BC प्लस AC, लेट दिस इज गिवन टू यू 13 सेंटीमीटर। एडिशन ज्यादा गिवन होगी, सब्ट्रैक्शन कम गिवन होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं ना, वी ऑलवेज स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन विद अ लाइन, ठीक है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लाइन यहाँ पर कौन सी ड्रॉ की जा सकती है? AB। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक एंगल भी गिवन होगा, राइट? या तो A एंगल या B एंगल, इन दोनों में से, ये 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों में से कोई एक एंगल गिवन होगा। सो लेट यू आर गिवन एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 3 चीजें गिवन है, एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज A, दिस इज B, ठीक है? ये आपने कर लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट। यस, हम कर सकते हैं 60 डिग्री का एंगल, बिकॉज वी हैव पॉइंट A आल्सो। तो इस पॉइंट पर हम ड्रॉ कर देंगे एंगल 60 डिग्री। यहाँ से आपने ये आर्क लगाई और इस पॉइंट को आपने इससे ज्वाइन करते हुए अपना 60 डिग्री एंगल कंप्लीट किया, ठीक है? आपका ये काम भी हो गया। अब आपका रह गया BC प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है? AC प्लस BC 13 सेंटीमीटर। अब मुझे किसी तरह से इसका ही यूज करना है, बाकी तो सारा कुछ मैं यूज कर चुकी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन माय कंपास 13 सेंटीमीटर। From point A, I will draw the arc of 13 सेंटीमीटर, ठीक है? ये इस एंगल को जिस पॉइंट पर भी कट करेगी, that point we have to take other than A, B and C. A, B, C से कोई लाइन ही छोटी बनी हो, फिर कौन सी लाइन छोटी बनी हो? तो आप एक्सटेंड करोगे ना,
आपके पास कॉपी है, आप अपनी लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, अगर आपको लगता है छोटा पड़ गया तो आपको इरेज करके फिर थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा उससे, राइट। तो यहाँ से आपने 13 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। वी आर गोइंग टू टेक दिस पॉइंट एज डी, हमने इसको सी नहीं लेना है, राइट। उसके बाद जब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, क्या कर सकते हैं इसको आप कर देंगे पॉइंट बी से join। ठीक है, राइट। अब ट्राइंगल तो अभी भी नहीं बना, देन व्हाट डू वी हैव टू डू, जो हमारे पास नई चीज आती जा रही है हमें उसका यूज करना है। पहले हमारे पास आर्क आई थी, हम आर्क से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था, इसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। जैसे आपने इसको ज्वाइन किया तो आपके पास ये लाइन आ चुकी है, और लाइन का आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस लाइन का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मोर देन हाफ खोल के, बी पॉइंट से आपने आधे से ज्यादा खोली, और यहाँ से एक आर्क आपकी इधर जाएगी और एक आर्क आपकी इधर आएगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप एक बार इस पॉइंट से आर्क लगा चुके हो, नाउ यू हैव टू टेक द आर्क्स फ्रॉम पॉइंट डी। जैसे ही आपने इनको यहाँ से आर्क लगाएंगे, यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देन यू हैव टू जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। अब किस आपने लाइन का परपेंडिकुलर बना रहे हैं? इस लाइन का आपने जो नई लाइन आई है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है वो, और एंगल वाली लाइन, ये वर्ड ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर वाली लाइन और एंगल वाली लाइन जो हमने एंगल बनाया था वो वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, and then you have to join the point B to C. You will get AC plus BC is equal to whatsoever was given in the question, 13 centimeter. इसको आप measure करेंगे, then you are going to get it to be 13 centimeter. ठीक है, कैसे आया ये, इसके एक बार जस्टिफाई करें इसको। हम कैसे कहते हैं कि इनका सम 13 कैसे आया। देखो, जो आपका ये ट्राइंगल बना है, ये आपका किस तरह का ट्राइंगल बना है। हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, ठीक है। ये वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का, डीबीसी का, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सामने वाली लाइन का परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। दैट मींस वो आपका सिर्फ तभी हो सकता है परपेंडिकुलर भी, लाइंस इक्वल होती हैं इफ यू हाँ जी। अगर आपको याद हो, मेरे पास अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं इस पॉइंट को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती हूँ तो ये हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, और आप कह सकते हो कि ये दो आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बट देयर सम इज 180 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री। मैम ये जो ADB वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर ADB तक तो समझ आ गया, उसके बाद का नहीं समझ आया। आपने करना सिर्फ इतना है जितना मैंने किया है, उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मेरा जो 13 आया है, ये तो मैंने ये वाली लाइन ली थी, बट हम कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 13 आ गया, वो कैसे आया। अदरवाइज आपने करना सिर्फ इतना, इतने तक छोड़ देना है। दिस इज फर्दर एक्सप्लेनेशन कि अगर मैं ये ये मैं कह रही हूँ कि ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना, ये ऑटोमेटिकली मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है। ये साइड्स और ये साइड दोनों आपस में इक्वल आ रहेंगे, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो, हम कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ से आया है, ये बाइसेक्टर कहाँ से आया? आपने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ करते हो। अच्छा हाँ, ठीक है। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी है, तो ये साइड इसके इक्वल है। अब इन दोनों का सम अगर 13 था, इसकी जगह तो ये आ गई, दैट मींस इन दोनों साइड्स का सम कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, कल स्कूल आना है बेटा के लिए, ठीक है। अब एक बारी मुझे दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ, मुझे एक बारी दोबारा से बताते जाना कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। Let we have to draw the triangle whose side BC is equal to 5 centimeter, and let angle C is equal to 30 degree, and
AC plus AB. This is equal to 10 centimeter. बताओ क्या करो? First of all, हम सबसे पहले BC की 5 सेंटीमीटर. I will have to take BC 5 centimeter. Next step. Ma'am, then at angle C we will draw an angle of 30 degree. Angle C 30 degree. So at point C, now point C is here. I will have to draw the angle of 30 degree. ये 60, but मुझे करना पड़ेगा 60 का half. इसी point से इस arc को और extend करना है. From this point I have to take one more arc. This angle is 30 degree. Then Ma'am, now from C we will put an arc of 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर की आर्क. C से ले रही हैं अब आपने एक आर्क 10 सेंटीमीटर की. इस पॉइंट को क्या नाम दे दूं? D. D. Yes. Other than the 3 points. Then we will join D to B. Yes, we are going to join the point D to B. Then Perpendicular bisector of CD. Perpendicular bisector of BD. of BD. ठीक है. अब BD. हमने सीख कर ले. अब आपके पास नई लाइन ये आई है. ठीक है. इनमें हमने ही होता है that we do the perpendicular bisector of any of the line. कि आपके पास नई लाइन ये आई है. जो नई लाइन आई है उसके तो पुराने लाइन का तो काम हो चुका. इसका perpendicular bisector करेंगे. ओपन मोर देन हाफ कंपास. ये आपने ये आर्क लगा दी. देन उसके बाद A और J का जो पॉइंट जो Yes. BD पे जो एंगल point वाली है, लाइन परपेंडिकुलर वाली लाइन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल. BC आपका ऑलरेडी हो चुका था. नाउ दिस इज A. देन यू हैव टू जॉइन द पॉइंट A to B. You will get your triangle ABC whose BC 5 centimeter, angle C 30 degree and AC plus AB will be 10 centimeter. मैम ठीक है. सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं. नहीं 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 नहीं, सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन में आपका डिफरेंस आएगा. ठीक है. बट डिफरेंस के केस में हमारे पास 2 केसेस हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हो जाता है. वो आपको समझाना पड़ेगा. करवा दूं अभी? मैम नहीं कल मैम ट्रायंगल ऐसे शेड करने हैं. नहीं नहीं, नो डोंट, यू डोंट हैव टू शेड द ट्रायंगल. हाँ जी. मैम नहीं कराओ कल करा दो. ओके, कल करवा देंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा. सिर्फ एक मैम सुन. मैम आज स्कूल आना है. हाँ जी, आना है, आपकी मर्जी है. मैम मैं तो आऊंगी. ओके, थैंक्स फॉर कमिंग.